Hello, everyone. We are live, and today I'm live with someone whom I truly respect and have a great admiration in my heart. She owns a real good space in my heart, in my learning everywhere. So I will start with her name. Let's welcome Farhana Siani. जी Hello, बिल्कुल Farhana. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जगन मैं आप जो आप कह रहे हो ना कि यू हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग आई हैव मच मोर ऑफ दैट फॉर यू बिकॉज लाइक मैं आगे कंटिन्यू करूंगी बट या आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू एज वेल Thank you, Farhana. Thank you. That's something so big for me. तो फरहाना ऐसे स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा इंटरव्यू है. बट विल स्टार्ट विद ब्रेकिंग अ नॉर्म. अक्सर हमारे जो लाइव्स होते हैं उनके ऊपर जब गेस्ट आते हैं तो वी टेल देम, वी एक्चुअली गिव देम अ चांस टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. But I will love to have the privilege of introducing you to my audiences and your audiences and the new people. क्योंकि ये इसका मेरे पास एक रीजन है. I want to avail this chance to express my emotions, and perhaps by doing this I might be voicing the feelings of our community and especially our teams. So I have jotted down something for you. I would love to read it out. So, guys, today I have the absolute honor of interviewing Farhana Siani, who has been a guiding force in the business. Farhana Siani, a young mom of two boys, a better half in the real sense, contributing in everything, a pharmacist by profession, and now a digital business owner. She is not just a mentor and a coach, but a true role model, leading with wisdom, clarity, and a deep commitment to her team success and to the community. In her 5 years in the business, she has reached the remarkable rank, a prestigious rank. Usually, we actually dream of to touch the one. So this rank speaks volumes about her dedication and commitment and her expertise. What sets her apart is not just her achievements, but the way she empowers her teams, the community, and us all. Her patience, her ability to truly listen, and willingness to provide solutions and guidance at every step. Every interaction with her, whether it's a coaching call or a Zoom meeting, it's a learning lesson. So, uh, today I get the privilege of bringing her insights to all of you. Let's dive into the conversation with someone who exemplifies with it means to lead by the example. So, this is Farhana Siani. I can say my hero. In the community, there are many of persons who are my heroes. I love Raman. Even I love my coach Raman Taliwal. So Farhana, you are again a big example and a model for us. So, uh, you want to हाँ reciprocate जगन something? लिखा है और कितना वेरी लाइक आई एम ऑनर्ड यू Thank लिसन टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड मैं ट्राई करती हूँ इन ऑल ऑफ माय मीटिंग्स एंड कॉल्स जितना ऑथेंटिसिटी से मैं अपने आप को गाइड कर सकूं अपनी टीम को आई you. ऑनेस्टली ट्राई टू जस्ट डू दैट उसके अलावा और कुछ भी नहीं Yeah, Farhana, we love that part of yours. So let's start with our first question. Farhana, your journey in this business has been incredible, undoubtedly. Can you take us back to the beginning when you started? What was your reason to join this business? So my reason was my older child. When I started, my older child was a year and a half old. I was Mhm, already working, mhm, and the struggles of working moms is, of not being able to concentrate fully on work and not being at home. Like, this constant pull ke ye bhi karna hai, ye bhi karna hai, and हाँ that जी, mom guilt. There came a time where I was not able to handle it anymore एंड आई थॉट कि आई प्रायोरिटाइज माई फैमिली और मैं घर पर जॉब क्विट करके मैं घर पर रहने लगी थी एंड आई वाज एबल टू डू दैट व्हाट फॉर 2 वीक्स एंड आई mhm, वाज लाइक नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ आई नीड टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ डू समथिंग mhm, एंड दिस अर्ज ऑफ
being able to stay with my child but also contributing financially was my driving force to start exploring and looking things outside of a 9 to 5 job जो मैं घर रहकर कर सकती Yeah, Farhana, I can understand that today we actually go through a big chunk of our community who has joined the business simply because of the same reason. And this is something very important for the community like us where we prioritize our children a lot. So Farhana, what do you think कि अगर जैसे आप इस बिजनेस में आए हो एंड और आपने इस बिजनेस को यू हैव क्रैक्ड इट वेरी सक्सेसफुली, व्हाट डू यू थिंक इन ऑर्डर टू जॉइन दिस बिजनेस, क्या किसी बंदे को जिसने बिजनेस जॉइन करना है, क्या उसको किसी खास माइंडसेट की जरूरत होती है, कोई खास प्री रिक्विजिट चाहिए होते हैं उसको इस बिजनेस को जॉइन करने के लिए, और द मैजिक हैपेंस लेटर ऑन? I would say the magic happens definitely later on because मैंने जब I can only talk by my experience क्योंकि मैं कोई एक्सपीरियंस के साथ नहीं आई थी. जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया, आई हैव अ फार्मेसी बैकग्राउंड, मतलब साइंस बैकग्राउंड जो मेरा कोई लेना देना नहीं था विद ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस कुछ भी नहीं. I came with zero knowledge, zero experience, but I have not been able to succeed with zero knowledge, zero experience. जो आकर जो एक willingness to learn, willingness to adapt, to new things, to initially get uncomfortable with learning, वो सारी चीजें go through करनी पड़ती है, and that can only happen if you have an open learning mindset, if you have this mindset of not giving up, if you have this positivity in your around what you are doing. अगर आप वो कोई स्टार्टिंग से, एज ह्यूमंस ऑल ऑफ अस हैव दिस नेगेटिव थिंग इन अस के हम चीजों को पहले प्रॉब्लम पर ज्यादा देखते हैं, सोल्यूशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट Yes. नहीं करते. हम मेजोरिटी हम सब वैसे होते हैं, मैं भी ऐसी ही थी. बट द ओनली माइंडसेट आई केम इन विथ वाज of not giving myself the chance to fail in the business because I couldn't afford to do that. बिकॉज जैसे मैंने बताया जॉब नहीं कर सकती थी मैं. मैंने देख लिया था जॉब करने से क्या लाइफ होती है, कैसा स्ट्रगल है. So that was my mindset कि जो भी है I have to make this work and whatever I have to do, whatever I have to learn, no matter what it is, I'll do everything in my power to do it. तो वो mindset चाहिए. एग्जैक्टली फरहाना, जैसे बहुत लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए व्हेन वी गेट इन इंटरेक्शन विद द नॉर्मल कॉमन पीपल, तो हम उनको बताते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर प्री रिक्विजिट्स है ही नहीं. बीइंग एन 18 ईयर इज समथिंग सो, इट्स सो कॉमन, वो होता ही है हर बंदा जब कॉल करता है. एंड द सेकंड प्री रिक्विजिट इज द वर्क. यू शुड हैव द वर्क राइट्स, अदरवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द माइंडसेट and that open mindset to learn and to succeed. Quit नहीं करना है, आगे ही बढ़ना है. This is something so important. So your message is quite clear. एक बात बताती हूँ फरहाना आपको कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, द मोमेंट आई ज्वाइन दिस बिजनेस, मेरी पहली ही जो पोस्ट होती है उसके ऊपर लिखा होता है, आई एम जगन कौर, डिजिटल बिजनेस ऑनर एंड अ मेंटोर. जबकि अभी मेंटीज आने, कब आने, कैसे होगा, ये सब बात की बातें होती हैं. सो इट मीन्स कि हमारे शोल्डर्स के ऊपर पहले दिन ही एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि वी आर सपोज टू मेंटोर समबडी, वी आर सपोज टू बी अ लीडर ऑफ समवन, कि उसको एग्जाम्पलीफाई करके हमने उसकी जर्नी को गाइड करना है. सो व्हाट डू यू थिंक कि सिर्फ नाम लगाने से मेंटोरिंग हो जाती है, या व्हाट माइंडसेट शुड अ मेंटोर हैव? उसके पास क्या होना चाहिए? मेंटी का तो हमने क्लैरिटी हो गई. मेरे हाँ जी. मेरे हिसाब से ना मेंटोर बनने के लिए यू जस्ट शुड बी, मेरे हिसाब से वन स्टेप अहेड ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग टू यू. इफ यू आर वन स्टेप अहेड, व्हाटएवर यू हैव लर्न इन दैट वन स्टेप, एक स्टेप भी आपने आज कैसे लिया, यू विल बी एबल टू गाइड समवन, यू विल बी एबल टू समवन. एंड आई फील ये चीज ना, आई थिंक हम सब में, स्पेशली मदर्स, हम सब में इन वुमेन ये चीज इनबिल्ट होती ही है. बिकॉज बच्चों के जो माँ बनने के टाइम से आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम टीचिंग देम समथिंग और द अदर. तो आप लाइफ में हर जगह पे, इवन विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, आप जब कॉलेज जाते थे तो फ्रेंड्स होते थे, आप सबसे some you are in this teaching position somewhere or the other, guiding position, आप लोगों को रास्ता दिखाते हो according to what you feel is the right way. तो यहाँ पर भी you are learning and you will be able to teach someone. And mentorship के लिए मेरे हिसाब से you should be open to the idea of not just
saying what you feel, but also being able to listen what the other person is facing. आप उनका problem समझोगे तो ही आप उनको उसका solution दे पाओगे. So that I feel is a big quality to have. या मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, सिर्फ एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाए कि सामने वाले को मैंने ओन करना है, ही और शी इज अंडर माय Yeah. विंग्स, तो अब उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, उसको कैसे रखना है दैट आई गेस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. सो बिल्कुल. फरहाना, सब लोगों को लगता है कि फरहाना सयानी जो है वो फरहाना सयानी ऐसी ही थी, पर क्योंकि हम लोग आपके साथ बहुत सारी ज़ूम क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे आपके साथ सेशंस लेते हैं, सो परहैप्स वी नो द अदर साइड टू. पर मैं चाहूँगी कि आज मेरी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को, कुछ नए लोगों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको ये ज़रूर बताइएगा कि फरहाना सयानी को भी कभी कोई चैलेंजेस थे इस बिज़नेस को जॉइन करने से पहले? क्या उनके दिल के अंदर भी वो टिक-टिक होता था कि ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, जैसे हम लोगों के दिल में होता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट चैलेंजेस वर दोज़? Absolutely. Mhm. Wherein nobody who is successful in the business हुँ, हुँ. started from that way. मैं अभी भी अगर किसी को कहती हूँ ना कि आई एम शाय, आई एम इंट्रोवर्ट, तो मेरा यकीन कोई कर ही नहीं सकता है, बिकॉज जितना भी मेरा ये पर्सनैलिटी बोलो, नेचर बोलो, जो बिजनेस को लेकर है, वो सिर्फ इट इज ओनली इन माई बिजनेस सेटिंग. इफ यू टेक मी आउट ऑफ माई बिजनेस, मी एज अ नॉर्मल पर्सन, I am still very quiet, very introverted, very shy. I cannot, have conversations with people. मतलब मुझे वो बात आगे बढ़ानी, मेरा नेचर ही नहीं है कि मुझसे बात हो. मैं तो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं इतने ब्लाइंड फेस से आई थी ना, आई टेल यू, मतलब मैंने इतना ज्यादा रिसर्च वगैरह किया ही नहीं था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या करना है. मैंने ये सोचा था कि बस this thing can give me what I want. Stay home, make money, be with my child, and make great income. मैंने ये सारा कुछ देखा था, and I was like कि अगर ये चीजें मुझे चाहिए, घर रहकर मिल सकती है, तो I will do everything. और वो with time, I had to be very my first year in the business was very uncomfortable, was because it was something which I was not. I was doing things which I had never done in my life. अभी इस तरीके से मैं आपके साथ जैसे हाँ जी. लाइव हम कैमरे पर बात कर रहे हैं, मुझे बहुत awkward लगता था, मुझे बहुत weird लगता था, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था. I have never been a public speaker also. All my school life, जो स्कूल में एलोकेशंस होते थे, स्पीचेस है, ड्रामास है, आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, बिकॉज वो मेरी पर्सनैलिटी थी ही नहीं कि स्टेज पर जाकर किसी की नजर में आंख मिलाकर कुछ बोल सके. मैं बॉम्बे से हूँ. हम स्कूटी चलाते हैं, आई डोंट नो, आप जी, जी. टू व्हीलर्स होती है, लेडीज एक्टिवा चलाती है एंड एवरीथिंग. इफ आई गॉट इन अ स्ट्रीट फाइट विथ समवन, इन द सेंस कि कभी किसी को धक्का लगा या फिर कुछ हुआ, मैं वहां से झगड़ा कर सकती हूँ. मैं ऐसी टाइप की हूँ अभी भी, स्टिल, दैट्स ऑल दैट इज. तो इमेजिन करो, इतनी अगर मैं सहमी हुई थी और डरी हुई, अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन came here, started the business with just one thing, determination that I will make it work. That was all. And एक एक स्टेप करके आगे बढ़ी हूँ. ये जो है ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ना कॉन्फिडेंस ओवरनाइट आया है, ना नॉलेज ओवरनाइट आई है, ना एक्सपर्टीज ओवरनाइट आई है. The kind of mentor and coach that you tell me I am, that also has not become overnight. मुझे उस चीज का भी बहुत फियर था, बहुत डर था कि हाउ विल आई डू इट. मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कौन हूँ, हु एम आई टू टीच समवन एल्स और गिव गाइडेंस टू समवन एल्स. पहले ये सारे डाउट, सेल्फ डाउट हमेशा से रहे और आज भी कभी कभी आते हैं. यू विल नॉट बिलीव इट, बट स्टिल टुडे वो एक क्या बोलते हैं उसको, इम्पोस्टर सिंड्रोम, दैट बस ये एक हो गया मुझसे. पता नहीं अगर मुझे ये फिर से करना होगा तो मैं कर पाऊंगी या नहीं. ऑल ऑफ दीज डाउट्स एज ह्यूमन, all of us have, and I am also just a regular human being with Farhana, all of these. I'm so Yeah, grateful that you yes, talked at length for this answer, क्योंकि this was very important. क्योंकि जिस फरहाना सयानी को इस टाइम पे कम्युनिटी देख रही है, हमारी टीम्स देख रही हैं, we guys are looking forward to you to be successful in this business community at one
वन गुड डे। तो हमें ये, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बहुत छोटी छोटी एनेक्डोट्स दिए हैं एक्टिवा वाला। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर एक बंदा उस जोनर से उठ के यहाँ तक पहुंच सकता है, तो आई गेस मैनी ऑफ देम माइट बी लुकिंग टुवर्ड्स यू कि हम लोग भी इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। और ये बात बहुत एकदम से सही है कि एवरी थिंग कैन बी डन बाय सिंगल स्टेप। एक एक स्टेप ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्ट्राइड्स जो हैं, जो स्टेप्स जो हैं, वो स्ट्राइड्स में चेंज होने के लिए इट टेक्स टाइम, बहुत वक्त लगता है। सो फरहाना, आपको, हम लोग सारे डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, and because this is a very popular you can say even a popular course kind of thing, या फिर हमारी कम्युनिटी का जो प्लेटफॉर्म है, it's becoming very popular and increasing with leaps and bounds। हम हर हफ्ते देखते हैं कि कितने नए लोग जो है, हंड्रेड्स में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आपको इस टाइम पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या लेटर ऑन कभी देखेंगे, आपको क्या लगता है कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को, जो वो डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में घुसना चाहता है, इसमें एंटर करना चाहता है, तो उसको किस सेल्फ डाउट को पीछे छोड़कर आना चाहिए? क्योंकि जनरली होते हैं, व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस, मैं भी यहाँ अपने मर्जी से नहीं आई थी। आई वाज एक्चुअली पुश टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म, मेरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से। और मेरे अंदर भी सेल्फ डाउट बहुत था। मुझे याद है कि 30 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए मुझे आपसे इंस्पिरेशन लेना पड़ा था। और आज कोई नहीं मानेगा, जब मैं इतनी फ्लुएंसी से वीडियोस बनाती हूँ, कि कभी मैं भी वैसी थी। अभी दिस हैपेंस, आई नो। उसके अंदर एक वो किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि कुछ करना है तो हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ डाउट्स को पीछे छोड़ के इस वर्ल्ड के अंदर घुसना, अ, क्या मैसेज दोगे लोगों को कि कितना आसान है, कि उनको कुछ प्लान करके अंदर आना, कि आ जाए बस? सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ना ना, इट इज लाइक सच एन इम्पॉसिबल टास्क, बिकॉज हम in our lives, in our everyday lives also, कुछ moments होंगे when you are very sure, very confident of what you're doing, and then the next day will come and some small thing would trigger you and you have like completely collapsed and you start doubting yourself कि मुझे ये करना चाहिए था, अभी नहीं है, did I do the right thing? ये चीजें आप ना स्टॉप कर सकते हो, ना अवॉइड कर सकते हो, ना कंट्रोल कर सकते हो। यस, दीज आर सम थिंग्स विच यू will go through, and I feel you should allow yourself to go through all of these emotions, all of these doubts, but not let them stop you from taking the smaller next steps which you need to take. That is the only thing I feel जो आप कर सकते हो. Plus what helps over here is the support, the community, the people that we have around us. कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में there are so many negative people in their life. किसी का स्पाउस नेगेटिव है, किसी के पेरेंट्स है, किसी के जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लाइफ डिसीजन, उनके डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस को लेके लोग कितने फैमिली मेंबर्स वगैरह अपोज होते हैं। ओवर देयर इफ यू आर गेटिंग दिस resistance from them, where are you going to lean on to? You will need a group, a community जहां पर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सको, बात कर सको, सपोर्टेड फील कर सको, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। सो दैट इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग विच यू गेट ओवर हियर, एंड दैट हैज हेल्प मी ऑल्सो। सी माई हस्बैंड वॉज विथ मी फ्रॉम द बिगिनिंग, उसके सपोर्ट से ही मैंने स्टार्ट किया है। बट देर आर स्टिल अदर लोग होते हैं लाइफ में जो बिलीव नहीं करते हैं आप में, जिनको लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज इन्होंने स्टार्ट कर दी है, एंड ऑल ऑफ दोस जजमेंट, एंड एज ह्यूमंस वी फियर जजमेंट। वी मतलब मैंने एक बिगिनिंग 1 year ऑफ माय बिजनेस, मैंने अपना बिजनेस जितना हो सके उतना सीक्रेट रखा था, तो किसी को नहीं पता चले, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू फेस जजमेंट ऑफ पीपल, देयर क्रिटिसिज्म, देयर ओपिनियंस, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे अफेक्ट करेंगे, मुझे पता है वो मुझे डिमोटिवेट करेंगे, एंड आई डिड नॉट वांट एनीथिंग टू कंटेमिनेट माय the bubble which I had made around me for that first year, because initially वो bubble मेरे लिए बहुत जरूरी था। उसी की वजह से I have been able to move ahead and see, do positive things around me and succeed. तो वो बहुत जरूरी है। फरहाना, देखिए, जब जब हम लोगों की टॉक्सिसिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते, तब हमारे अंदर पहले से ही एक स्ट्रगल तो चल ही रहा होता है
किंतु और परंतु तो ऑलरेडी हमारे अंदर चल रहे होते हैं। रोज़ हम पत्नी पता नहीं कितनी बार ये सोचते हैं कि वेदर वी हैव टेकन द राइट डिसीजन और नॉट। समटाइम्स आई फील लाइक इट्स सो ओवरवेलमिंग कि क्या ये मेरे बस की बात थी जो मैंने शुरुआत की? पर द अदर डे आई फील सो किक्ड अप, सो अपलिफ्टेड, मुझे लगता है कि ये तो काम ही मेरे लिए बना हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट थिंग्स मूव हेड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जो लोग आपके, अब नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा। मेरी फैमिली के अंदर जो 4 लोगों को पता है उसमें कोई भी बंदा नेगेटिव नहीं है, लेकिन कोई भी एनकरेजिंग नहीं है एक्सेप्ट माय डॉटर। माय डॉटर सीज़ अ रे ऑफ होप, माय मम्मा कैन क्रैक इट बिकॉज़ उसको पता है कि ये मेहनत करने वाली बंदी है। लेकिन माय सन एंड माय हस्बैंड समटाइम्स मेरी तरफ से क्वेश्चन मार्क की तरफ देखते हैं कि आर द थिंग्स हैपनिंग? पर हिम्मत किसी की नहीं होती क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आई टेक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, और मैं अपने किसी रोल से भागने वाले बंदा नहीं हूँ। सो दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट। I guess this is the time we should conclude the conversation with a strong message for two of the different parts of our community. One, who are the new business owners. मुझे पता है कि उनको उस सपोर्ट का, उस मॉरल किक का बहुत बड़ा ज़रूरत है। और दूसरा, जो लोग अभी भी फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं और एंड दे आर थिंकिंग कि रोज दिल में टिक-टिक करता है कि अंदर घुसे या नहीं घुसे। अगर घुसते हैं तो भी दिल डर रहा है, अगर नहीं घुस पा रहे हैं तो भी हमारी प्रोग्रेस को देख के वो लोग बॉदर्ड हैं कि दे दे आल्सो वांट टू टेस्ट द सेम थिंग। सो गिव अ मैसेज टू एवरीवन। या तो ये जो है ना, एक जो हमने अभी सेल्फ डाउट की बात की, हुँ, जब कितने लोगों का एक तो सेल्फ डाउट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज होल्डिंग देम, और हुँ, दूसरी चीज होती है कि मुझसे मतलब सही चीज मुझसे हो पाएगा या नहीं, या फिर दैट क्वेश्चन दैट यू आस्क हुँ, योरसेल्फ। हुँ, एंड द ओनली वे ऑफ फिगरिंग इट आउट is by taking the step and actually doing it. आप फेंस पर बैठकर, आप ये क्या कहते हैं, ड्राइविंग का एग्जाम्पल, आप ड्राइव पैसेंजर सीट में बैठकर नहीं सीख सकते कि गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है। आप बस आप बैठे रहोगे और गाड़ी अपनी चलती रहेगी। यू बट यू नॉट गोइंग टू लर्न, यू नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग by just observing, by just listening. You have to take the driver's seat. You have to take control of what you can control. और ये एक चीज है जो आप कर सकते हो। अब कितने साल है, एवरी डे आई स्पीक टू सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू कोई ना कोई अलग टाइप की स्ट्रगल उनकी चल रही है। जैसे जॉब नहीं मिल रही है, जॉब है तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता है, वेकेशन पर जाने का टाइम नहीं मिलता है, सेविंग्स नहीं होती है, पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं। ये सारी चीजें, आप सिर्फ इन चीजों की कंप्लेन ही करते रहोगे। अगर हुँ, आप कुछ बदलते नहीं हो, इफ यू डोंट डू समथिंग टू चेंज दिस सिचुएशन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यस। 5 साल पहले मेरा एक ही, जैसे मैंने बताया, मोटिवेशन था कि अगर मैं इस बिजनेस को, इफ आई डोंट मेक इट वर्क, व्हाट चॉइस डू आई हैव? गो बैक टू दैट जॉब अगेन, कम बैक लेट इवनिंग, बच्चे को the kind of person I was becoming because of that, like low on patience, always stressed, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना। हुँ, हुँ, बच्चे पर निकलता था ना वो सारा, किस पर निकल रहा था? आप हुँ, अपनी फैमिली को ही, यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस विद देम। आई डिड नॉट वांट टू बिकम दैट पर्सन अगेन। आई हैव बहुत मुश्किल से उससे मैं बाहर निकली हूँ। आई वांट टू बी द काइंड ऑफ मदर दैट आई एम, who has time for her business, who has time for her sanity, who has time for everything। ये जो शेड्यूल और जो सिस्टमैटिकली जो मेरी लाइफ अभी चल रही है, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड, दिस इज वॉट आई हैड ड्रीम्ड ऑफ। और अगर मैंने 5 साल पहले वो स्टेप नहीं लिया होता, खुद ही यस। पॉसिबल नहीं होता। दैट्स ऑल आई वुड से। Yeah, something you made something really really very crystal clear कि एक स्टेप जो आपको लेना है उसके बिना बात नहीं बनेगी, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होगा। फरहाना, हम इस कन्वर्सेशन को आज यहीं कंक्लूड करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल टू सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली सेंडिंग मैसेजेस, पूनम, रमन, जस, काजल जी, नरेंद्र, इकरा, इट्स अ बिग बिग जस्ट कौर जी। I guess that shows how Farhana Siani is loved and admired in the community. So thank you very much for being the part of this conversation and taking time out of your schedule. I know it's very tight क्योंकि मुझे हम लोगों को आइडिया हो रहा है अब आपके लाइफस्टाइल का. So thank you very much for giving these deep insights
ताकि बाहर बैठे हुए लोग जो हैं या हमारी न्यू कम्युनिटी जो है, उनके लिए ये जर्नी थोड़ी सिंप्लीफाइड और ईज़ी हो जाए और वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। थैंक यू। थैंक्स, जगह। थैंक यू। ओके।